बहुत संक्षेप संदेश परमेश्वर के वचन से देना चाहूँगा। As the text of our message today shall we read from Ephesians 2nd chapter 8th verse. और जो है आज के चिंतन के लिए हम निकालेंगे इफिसियों 2 अध्याय इसका 8वां आयत। For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह है जिससे तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Paul says to Ephesians, पौलुस इफिसियों लोगों से कह रहा है, you have been saved by grace तुम्हारा उद्धार अनुग्रह के चलते हुआ है and by faith, और विश्वास से हुआ है, not by your own works. आपके अपने कार्यकलापों से नहीं। Shall we just offer a small word of prayer before we start meditating upon those words? और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, थोड़े हम 2 शब्द में प्रार्थना करना चाहेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना में जाएं। Almighty God, our most wonderful, never failing, ever loving, never changing God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कभी बदलते नहीं और सदा एक से हैं, We thank and praise you for this wonderful opportunity of meditating upon thy precious word in the city of Katni tonight. और आपके वचन को लेकर परमेश्वर ये कटनी शहर में खड़े होने के लिए आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। As it has been shared in the introductory words, O Lord, your servant is not able to preach long messages. और प्रभु इंट्रोडक्टरी स्पीच में जैसे बताया कि आपके दास ज्यादा लंबे दीर्घ भाषण नहीं दे सकते हैं, But long messages are not required for us to be blessed, O Lord. और लंबे वचन की सेवकाई जरूरी नहीं आशीष पाने के। You spoke only one word and light was created in the darkness in the beginning. आपने शुरुआत में सिर्फ एक शब्द कहा कि उजियाला हो जाओ, और उजियाला हो गया अंधियारे से अलग। You have said, let there be light, and there was light. आपने कहा उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। And to bring out the dead Lazarus from the grave, you have to speak only one little word. और लाजरस जो मृत था उसको कब्र में से दिलाने के लिए आपको सिर्फ एक शब्द प्रार्थना कहना पड़ा। You have commanded, saying, come out Lazarus, and he came out immediately. और आपने कहा लाजरस उठ बाहर आ जा, और लाजरस उठ कब्र को उठ के बाहर आ गया। One single word and one single sentence from your mouth is enough for us, O Lord. आपके मुंह से निकली एक शब्द और एक वाणी पर्याप्त है परमेश्वर। Precious Lord, speak unto our hearts tonight. अनमोल प्रभु हमारे हृदयों से आज रात बातचीत करें। Please wash both of your servants here by thy holy precious blood right अपने now. पवित्र दोनों दासों को अपने पवित्र लहू से धो लीजिए अभी। Anointing both thy servants by the precious oil of the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा के अनमोल तेल से अभिषेक करें हम पवित्र आत्मा के। Put thy words into your servants' mouths, O Lord. अपने वचन को अपने दासों के मुख पर दीजिए। Keep both of us under thine absolute control. और प्रभु हम दोनों आपके पूर्ण नियंत्रण में रह सकें। As you are speaking to our hearts, O Lord, open our spiritual eyes by the power of thy Spirit. और प्रभु जब आप बातें करते हैं हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए अपने आत्मा की सामर्थ से। Show us clearly the way in which we should walk. और हमें वो राह दिखा प्रभु, हमें कैसे चलना है, किस तरह। In the name of Jesus we pray. मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मसीह में, the Bible tells us that we are saved by faith. बाइबल हमें बताती है कि विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ। We are saved by believing on the Lord. हम विश्वास से बचाए गए कि हमने प्रभु पर विश्वास किया। That's a very small statement. वो तो एक बहुत छोटा सा कथन है। That looks very simple on the surface level. और देखने में बहुत सहज मालूम होता है आमतौर पे। But the meaning thereof is very profound. लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। That small little word has so much to teach us. और एक छोटे से शब्द में इतनी ज्यादा आशीष या अनुग्रह भरी है। It is like a big ocean.
ये एक बड़े समुंदर की तरह है। The Bible tells us we are saved by faith. और बाइबल हमें बताती है कि विश्वास से हमने उद्धार पाया, Saved by believing on Him. और हमने उस पर विश्वास किया, इसलिए हम उद्धार पाए। Why does the Lord require faith in order to save us? क्यों प्रभु चाहता है हम में विश्वास ताकि हम बचा लिए जाएं? That single thought itself takes all the 3 days of these meetings to meditate and get the revelation. और जो है ये इसका प्रकाशन पाने के लिए तक जो है प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं होते हैं। The truth cannot be grasped within one single meeting. और एक ही अर्थ से सच्चाई को पूर्णतः हम नहीं पकड़ सकते। Whatever God says and does, जो कुछ भी परमेश्वर कहता है और करता है, it is highly logical and highly reasonable. वो बहुत ही तर्कपूर्ण है और बहुत ही सिद्धांतिक है। God is the one who gave us the power to reason and to argue. और प्रभु ने ही हमको वो सामर्थ्य दी है कि हम तर्क कर सकें या वाद विवाद कर सकें। And the one who created the power of reasoning in human mind, और जिसने मनुष्य की बुद्धि में तर्क की शक्ति दी है, even he has the power of reasoning. उसके अंदर भी तर्क की सामर्थ्य है। He has greater power to reason and to argue and to calculate. और उसके पास और अधिक सामर्थ्य है तर्क करने की, वाद विवाद करने की और गणना करने की। All the steps of the Lord are very calculated. और प्रभु के हर एक कदम और हर एक जो है उसके कदम बहुत संभले हुए और पहले से तय हैं। God loved the whole world. प्रभु ने सारे जगत से प्यार किया। He didn't want that anyone should perish and go to hell for eternity. और वो कोई नहीं चाहता नहीं था कि कोई भी नाश होए और तबाह हो, बल्कि सब अन्य अनंत जीवन को पाए। He preferred that every human being should be saved. और वो ये चाहता है कि हर एक मानव व्यक्ति जाति उस उद्धार को पाए। When God loved the world and wanted the whole world to be saved, जब परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और परमेश्वर चाहता कि सारे लोग बचा लिए जाएं, He made a plan of salvation for the whole mankind. तो उसने एक उद्धार का एक योजना बनाया पूरे मानव जाति के लिए। In God's plan of salvation, और परमेश्वर के उस उद्धार में जो एक योजना के तहत थी, He decided that He will save the people by their faith. और उन्होंने निश्चय किया कि उनके विश्वास के आधार पर उनको जो है छुड़ाएगा। There are two forces coming together to save a human being. और दो प्रकार की सामर्थ आ रही है एक मनुष्य को बचाने के लिए। One force is coming from God and one from the human being. और एक सामर्थ आती है परमेश्वर की ओर से और एक ताकत लगती है मनुष्य की ओर से। The force from the person to be saved is faith. और जो है जो विश्वास की बात है वो जो है मनुष्य से आ रही है, उद्धार पाने के आदमी से। What the person who wants to be saved, he has to exert the force called faith. और जो है जिस व्यक्ति को उद्धार पाना है उसको उस विश्वास के उस बल पे विश्वास करना होगा। Faith from the human side, और मनुष्य की तरफ से जो विश्वास, grace from the divine side. और परमेश्वर ईश्वर की तरफ से अनुग्रह है। When they both come together, the individual is saved for eternity. जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति विशेष उद्धार को पा लेता है। Now it is unquestionable that God must have grace on anyone if he or she should be saved. और अब ये तो बिल्कुल तर्क रहित हो गया है ये बात कि परमेश्वर को अनुग्रह होना चाहिए बचाने के लिए। We are saved by God's grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। Grace is unmerited favor upon the unworthy man, unworthy person. और परमेश्वर की असीम प्यार है जो हम लायक नहीं थे, हम नालायक इंसानों के लिए। Even heaven survived because of God's grace. और जो है स्वर्ग भी देखें तो परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण है। Even cherubim and seraphim and the great archangels, they survived because of God's grace. और जो है करूब और जितने भी लोग हैं वो सब जो किस लिए बने हुए अस्तित्व में क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। In the vision of Isaiah, the prophet, यशायाह नबी के दर्शन में the seraphim they were singing praises unto the Lord Jehovah. और सराफ लोग जो हैं वो दो पंखों में उठते हुए स्तुति और
they had 6 wings, उनके 6 पंख थे, and with 2 wings they covered their feet. 2 से उन्होंने अपने पैरों को ढांप रखा था, 2 wings they were flying, और 2 से वो उड़ रहे थे, and with 2 wings they were covering their faces like that, और 2 से अपने मुख को वो ढांप रहे थे, and saying, "The Lord of hosts is holy, holy and holy." और वो कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। Why should they cover their faces when they were worshiping the Lord? क्यों वे लोग अपने मुख को ढांप रहे हैं जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? It is because they were feeling unworthy in the presence of God. क्योंकि वो अपने आप को लायक नहीं समझ रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति और हुजूरी में बने रहने के लिए। If the seraphim were feeling unworthy before the presence of the Lord, यदि करूबों को ऐसा आभास होता है परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को लायक नहीं पाते how हैं, much more unworthy are we, the children of Adam and Eve? तो फिर हम और आप कितने नालायक हैं और कितने अयोग्य हैं कि उसके समक्ष हम ऐसे खड़े हो सके। If the angels of heaven are not worthy, they are not holy before God. यदि स्वर्ग के स्वर्गदूत परमेश्वर की नजर में उतने पवित्र नहीं हैं और उतने लायक नहीं हैं, How much more unworthy we are, तो the फिर children of clay. तो फिर हम जो मट्टी के बने हुए मनुष्य हैं, पुत्र हैं, हम कितने लायक नहीं हैं और कैसे हैं हम देखो। So it goes without saying, it is unquestionable fact that we can be saved only by God's grace. और ये एक कोई प्रश्न करने वाली बात ही नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही बचाए जा सकते हैं। But when we see from the human side, लेकिन जब हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, God says you must have faith. तो परमेश्वर कहता है तुम्हें विश्वास होना चाहिए। Why does God want faith from us? परमेश्वर क्यों हमसे विश्वास चाहता है? I'll cut short my message. मैं अपने मैसेज को संक्षेप कर रहा हूँ। The plan of God for our salvation, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर के जो उद्धार के जो तत्व थे, they are just the reversal. They are the reversal of what happened in the Garden of Eden. और वो जो आदम की वाटिका में जो घटा था वो उसका ठीक विपरीत था। In the Garden of Eden, आदम की वाटिका में Adam and Eve, they have disbelieved God. आदम और हवा ने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, अविश्वास किया। They have doubted God. वो परमेश्वर पर संदेह करने लगे। God had already told them, और प्रभु ने परमेश्वर ने उनको बोला था, "Thou shalt not eat of the fruit of the tree that gives you the knowledge of evil and good." और अच्छे और भले का बुरे का ज्ञान का जो पेड़ का फल तू है मत खाना करके परमेश्वर ने उसको आगाह किया था। When you eat the fruit thereof, और जब वो उस फूल जिस दिन फल को खाएगा तू मृत हो जाएगा, you will surely die, the Lord said. तू निश्चित मर जाएगा, मृत हो जाएगा करके कहा था। Then Satan had entered. तो फिर सातान ने वहां प्रवेश किया। You know what the devil said? और आप जानते हैं शैतान ने क्या कहा? He said, "Thou shalt not surely die." उसने कहा तुम निश्चित कभी नहीं मरोगे। God said, परमेश्वर ने कहा "You will surely die." तुम निश्चय मर जाओगे। Satan says, और शैतान कहता है "You will not surely die." तुम निश्चित नहीं मरोगे। Whom did Adam choose to believe? और आदम ने किस पर यकीन फरमाया, भरोसा किया, किसकी पर? Whom did Eve, our mother Eve, choose to believe? और हमारी माँ हव्वा ने किस पर यकीन फरमाया कि सही है? They preferred to believe Satan in the place of God. और परमेश्वर के स्थान पे शैतान की बातों को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। If they had believed God's word, they would never have eaten that fruit. और जो है यदि वो परमेश्वर के इस वचन को यकीन करती तो वो फल को नहीं खाती। And when Satan said, "You will not surely die," और शैतान ने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, and you will be like gods. लेकिन तुम परमेश्वर के समतुल्य हो You will जाओगे know everything. और तुम सब चीज का ज्ञान रखोगे। You will know what is good and what is bad. तुमको ये पता चल जाएगा क्या बुरा है क्या भला है, And you will be equal to God. और तुम परमेश्वर के समतुल्य होगे। So these two people, they wanted to become equal to God. और ये दो लोग जो हैं परमेश्वर के समतुल्य बनना चाहते थे। So they had ventured disobeying God's word. तो उन्होंने ये जोखिम उठाया कि वो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर दें।
they had disbelieved God and disobeyed God. उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी किया। Unbelief and disobedience. अविश्वास और आज्ञा का उल्लंघन, These two things have caused the first great fall of the humankind. और ये जो है ये दो कारण थे जो मानव जाति के पतन का मुख्य कारण हुआ शुरुआत में। And when God was framing the plan of salvation for us, और जब परमेश्वर हम और आपके लिए उद्धार के उस योजना को वो अंजाम दे रहा था, He had carefully designed the plan of salvation in such a way उसने इतने संतुलित रूप से जो है तैयार किया उद्धार की वो योजना को। in the place of Adam's unbelief, He wanted us to display the faith. और जो है उस आदम ने जहां अविश्वास किया वहां परमेश्वर चाहता था कि हम विश्वास को माने। Faith is the opposing force of unbelief. और जो है अविश्वास का विपरीत ताकत है विश्वास करना। Your faith is the reversal of Adam's mistake. आपका विश्वास जो है आदम की हुई गलती का रिवर्सल है या उसका विपरीतवाद। Adam has deliberately decided to disbelieve God and to doubt God. आदम ने जो है परमेश्वर पर अविश्वास किया और शंका किया जानते हुए। When you deliberately decide, determine, choose, prefer to believe God, you are undoing the mistake of Adam. और यदि हम आज जब विश्वास हमको करने को कहा गया है तो हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम वही गलती करते हैं जो आदम ने किया। Adam doubted God and fell from the glory. आदम ने परमेश्वर पर संदेह किया और उसकी महिमा से गिर पड़ा। I believe God and enter into glory. मैं विश्वास किया परमेश्वर पर और महिमा में प्रवेश कर गया। You will be saved by believing the Lord. आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, बचाए जाएंगे। Because your progenitor, your first father Adam had lost glory by not believing in God. क्योंकि आपके पहले पिता जो है आदम ने महिमा को खो दिया परमेश्वर पर अविश्वास करके। Secondly, दूसरी बात, Adam displayed outright disobedience to God. और जो है आदम ने जो है आज्ञा की अवहेलना भी करी और इस तरह की गलती की। Adam did exactly what God had forbidden. और परमेश्वर ने जिस चीज को ना करने को कहा था उसी चीज को उसने वही किया। Adam did exactly what God told him not to do. और आदम ने वही काम किया जो परमेश्वर ने उसे करने को मना किया था। You know, in the epistle of Hebrews, 5th chapter, इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय में and 9th and 10th verse, if you kindly look into those verses, और उसके 9 और 10 को जरा पढ़ लें 5 में। Hebrews 5, 9th and 10th verses. इब्रानियों 5 का 9 और 10। The Bible says in those verses, और बाइबल उसमें बताती है the Son of God has caused the eternal salvation for all those who obey Him. और प्रभु के परमेश्वर के पुत्र ने अनंत की वो जो उद्धार उनके लिए तैयार करी जो जितने लोग विश्वास करते हैं। What kind of a salvation Jesus gives us? किस प्रकार की उद्धार यीशु हमको देता है? That is everlasting salvation. अनंत का जीवन, जो अनंत का उद्धार, Eternal salvation. अनंत का उद्धार या अनंत का निजात। It is not a salvation for 1 or 2 years or a decade or 2 decades. वो केवल 1 या 2 साल या 1 दशक या 2 दशक के लिए नहीं है। It is for ever and ever and ever. वो हमेशा 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 के लिए है। John 3:16 tells us, और यूहन्ना 3:16 बताता God है so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, God had loved the world so much परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believeth on Him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे should not perish वो नाश ना हो but have everlasting life. परंतु अनंत जीवन को पाए। Whosoever believes on the Son of God जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा should not perish. वो नाश ना हो। That is the will of the Lord. ये परमेश्वर की इच्छा है They must have life eternal. और जो है वो अनंत
जीवन देना They चाहता should है have life everlasting. और उनके पास अनंत हमेशा का जीवन They हो should have life abundant. और उनके पास बहुतायत का जीवन हो। That is the will of the Lord. ये परमेश्वर की इच्छा है। Jesus came to this world to give us that abundant life, यीशु eternal मसीह life. संसार में इसलिए आया ताकि हमको बहुतायत का जीवन दे, अनंत का जीवन दे। Of course, the Son of God gives us the eternal life, निश्चित रूप से परमेश्वर का पुत्र हमको अनंत जीवन देता है, but it is also a point of great interest to whom He gives that eternal life. और ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि वो किसको ये अनंत जीवन देता है। The Bible says बाइबल हमें बताती है He gives the eternal life to only those who obey Him. वो अनंत जीवन उन्हीं को देता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। That means, इसका मतलब before giving the gift of salvation, इससे पहले कि वो उद्धार के उस तोहफे को या हमको वो वरदान दे, Jesus wants to know whether this person is obedient or disobedient. यीशु ये जानना चाहता है कि ये व्यक्ति आज्ञाकारी है या नहीं। Before imparting the great eternal salvation, इससे पहले कि वो अनंत के उस बड़े वरदान को दे किसी को, उद्धार को, Jesus wants to ensure that this particular person, man or woman, is obedient. जी यीशु इस बात की निश्चय कर लेना चाहता है कि ये पुरुष या ये स्त्री आज्ञाकारी है या नहीं। He wants to test and ensure that this is an obedient person. और वो ये जानना चाहते हैं और निश्चय होना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आज्ञाकारी है या नहीं। How does he know whether a person is obedient or not? वो कैसे जान लेगा कि कोई व्यक्ति आज्ञाकारी है या नहीं है? How do you test the obedience of a person? आप किस तरह किसी दूसरे व्यक्ति की आज्ञाकारिता को परखते हैं या जानते हैं? Just think about that. उसके बारे में थोड़ा सोचें। How do you ensure the obedience of a person? आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसे निश्चय करते हैं कि आज्ञाकारी है या नहीं? Simply give him a work to do. उसको कोई भी एक कार्य सौंपो करने के लिए, Give him some kind of orders or commandment. और उसको किसी प्रकार की आज्ञा या उपदेश दीजिए उसको, Tell him a little work to do और उनसे कोई थोड़ा बहुत काम करवाने को दीजिए and see whether he does it or not. और जरा करवा के देखो कि वो करता है वैसा कि नहीं करता है। When you want to bless a person, तब आप जब धन्य पुरुष हैं, suddenly just let us take it. Let us imagine that you suddenly have inherited millions of rupees of inheritance. और मान लीजिए मिरास में हमको लाखों लाखों रुपीस हमको मिल गए हैं, रुपए मिल गए, करोड़ों मिल गए हैं, Crores of rupees of property have suddenly inherited. और बहुत हमको करोड़ों की संपत्ति हो गई है, And you want to give 1 crore of rupees to somebody. और आप 1 करोड़ रुपए किसी को देना चाहते हैं, And among your neighbors, और आपके पड़ोसियों में there is a person एक व्यक्ति है, who never respected you. वो उसने कभी आपका आदर नहीं किया है, He never cared for your words. वो कभी आपकी बात की परवाह भी नहीं करता था। He is a young lad. अब वो एक जवान लड़का है, Whenever you tell him a work to do, he says, "No, simply I won't do. I have no time. I don't care." जब कभी आप उसको कोई काम सौंपो तो कहता मेरे पास समय नहीं है और मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ। Now I am asking you, अब मैं आपसे पूछना चाहता will हूँ, you take this 1 crore of rupees and give to that disobedient lad? क्या आप इस 1 करोड़ रुपया को लेकर वो आपकी बात को कभी ना मानने वाले उस व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को आप देंगे? Other side of your house, आपके घर के दूसरी तरफ there is another young lad. वहां पर एक और जवान व्यक्ति है, That lad, that boy is very obedient to you. वो बहुत आज्ञाकारी है आपके प्रति, He does whatever you tell him to do. और आप उससे जो कुछ भी कहते हैं वो वैसा सब You tell करता है। him, "Son, go and get some vegetables. और आप कहते हैं बेटा जाओ थोड़ी सब्जी खरीद के ले आओ, Get some medicines for me. जाओ थोड़ी दवाई ले आओ, Make some tea for me. मेरे लिए थोड़ा चाय बना दो, Clean my house for मेरे me. घर को साफ कर दो, Clean my clothes." मेरे कपड़े धो दो। And whatever you tell him to do, he is always doing that. आप जो कुछ भी उसको कहते हैं करने को वो सब कुछ करता है। When you have a good heart to give that 1 crore of rupees, जब आपके पास इतना अच्छा दिल है 1 करोड़ रुपए देने का, naturally your heart is inclined to help and bless the obedient child. और प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से आपका हृदय जो है, जो आपकी बात की आज्ञा पालन करता है, उसको देने के लिए आपका मन उस तरफ झुकेगा। Man is created in the likeness of God.
और मनुष्य जो है परमेश्वर के समतुल्यता में बनाया गया, उसी के स्वरूप और समानता में। When you want to bless only those who are obedient to you, that is the likeness of God. यदि आप उनका ही भला करते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, तो ये परमेश्वर की स्वरूपता और समानता का एक विशेष गुणवत्ता है। It is wrong to bless a disobedient child. और एक आज्ञा पालन ना करने वाले बच्चे को आशीषित करना इस तरह से ठीक नहीं है। Because it will harm the society by blessing the disobedient one. और समाज के साथ जो है बुरा करेंगे ऐसे व्यक्तियों की मदद करके। When you give 1 crore rupees to the disobedient boy, वो आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति को आप 1 करोड़ रुपए देंगे, every other lad in the colony, in the township, they will believe, oh, this is the right path to live. और वो कहेंगे ये है सही तरीका जीने का। They will think that if we also become disobedient, he will give us our 1 crore to each one. तो वो ये सोचने लगेंगे कि हम भी जो है आज्ञा पालन ना करें, बिगड़े और ऐसी सब करें तो हमको भी पैसा मिलेगा, हम भी सब ऐसे ही हो जाएं। When you give 1 crore rupees to the disobedient person, जब आप एक आज्ञा पालन ना करने वाले व्यक्ति को जब 1 करोड़ रुपए दोगे, you are encouraging disobedience. तो आप आज्ञा पालन या आज्ञा की अवहेलना करने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं। You are encouraging indiscipline. आप जो है अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं। A person, an elderly person with a responsible attitude toward the society, समाज के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने वाले एक जिम्मेदार बुजुर्ग व्यक्ति he will bless only the obedient one. वो आज्ञा पालन करने वालों को ही आशीषित करेगा। So everyone else is inspired and guided to become obedient. ताकि दूसरे समाज के लोग भी उसे देखकर आदर्श माने और वैसे ही बनने की कोशिश करें। So it is with God's plan of salvation. तो ये है परमेश्वर का तरीका जो उद्धार का। When God wants to bless you, जब परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, He wants to see some obedience in you. वो आप में कुछ आज्ञा पालन देखना चाहता है। When God wants to save you, जब प्रभु आपको बचाना चाहता है, He wants to ensure, before saving you, He wants to ensure that you are an obedient child. और इससे पहले कि वो आपको उद्धार दे, वो इस बात से निश्चय कर लेना चाहता है कि आप आज्ञाकारी हैं या नहीं। How can you know the obedience of a person? आप किस तरह किसी व्यक्ति की आज्ञाकारिता को जान सकते हैं? Give him a commandment and see. उसको एक आज्ञा देकर देखें और फिर कहें। Among all the commandments of the Lord in the Holy Bible, सारे जो आज्ञाएं दी गई हैं बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, only one commandment is given to the unsaved people. उसमें से एक ही आज्ञा है जो उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए है। All other commandments are given for the children of God. सारी आज्ञाएं परमेश्वर के संतानों के लिए दी गई हैं। You should give your tithes to the Lord. आप अपने दशांश देना प्रभु को। You have to pray every day. हर प्रतिदिन प्रार्थना करना है। Pray without ceasing. और जो है प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना करते रहें। Love the neighbor as yourself. अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। Don't covet, don't desire the thing belongs to somebody else. दूसरों की संपत्ति या स्त्री किसी का लालच न करें। Don't be jealous. दूसरों से ईर्ष्या न Don't करें। be envious. और दूसरों से जलन या Don't भेदभाव न रखें। be too angry. और क्रोधित न होएं। Love one another. एक दूसरे से प्रेम करें। Meditate the word of God. और परमेश्वर के वचन का ध्यान करें। Attend the fellowship of the saints regularly. पवित्र लोगों के साथ संगति करें निरंतर। All these are only for Christian believers. ये सारी आज्ञाएं मसीही विश्वासी लोगों के लिए है। These commandments are not given to non-Christians. और ये आज्ञाएं गैर मसीही लोगों के लिए नहीं दी गई है। How can a non-Christian give tithes? फिर कैसे एक गैर मसीही दशमांश दे सकता है? How can an unbeliever who is not the child of God pray without ceasing? और किस तरह एक अविश्वासी जो प्रभु का संतान नहीं है निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकता है? Simply not possible. ये तो सहज रूप से देखें संभव ही नहीं है। He commanded us, go and preach my gospel. उसने हमें आज्ञा दी, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। How can an unsaved person preach the gospel? कैसे एक उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति सुसमाचार सुना सकता है? All these commandments are only
for the children of God who are born again, who are saved. ये सारी आज्ञाएं उनके लिए है जो परमेश्वर की संतान हैं, जो नया जन्म पाए हैं, जो उद्धार पाए हैं। There's only one commandment given to the unsaved people. केवल एक ही आज्ञा दी गई है जो बचाए नहीं गए ऐसे लोगों के लिए। This one commandment is given so that they will be saved. और ये आज्ञा इसलिए दी गई है ताकि वे लोग बचा लिए जाएं। God gave this commandment to qualify them for salvation. प्रभु ने ये आज्ञा इसलिए दी ताकि उनको भी उद्धार के लिए योग्य ठहरा सके, बना सके। God gave this commandment to judge whether they are obedient or disobedient. और प्रभु ने ये आज्ञाएं दी हैं न्यायियों को, वो आज्ञाकारी हैं या नहीं हैं। You know what that commandment is? और आप जानते हैं क्या है वो आज्ञा? That is the commandment to get baptized in the waters. वो है जल का बपतिस्मा लेना। He that believeth is and is baptized shall be saved. और वे जो विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं वे उद्धार पाएंगे। He that believeth and is baptized in the waters shall be saved. और जो है वो विश्वासी हो तो बपतिस्मा ले तो उद्धार पाएगा। Some people question why baptism at all. और कई लोग प्रश्न करते हैं बपतिस्मा क्यों? See, we are saved by faith. देखिए हमने विश्वास से उद्धार पाया। God looks upon the heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। Baptism is something we do with the physical body. और हमारे शारीरिक शरीर से उसका कोई सरोकार नहीं। Why this physical activity is required for our salvation? वो हमारा शारीरिक को क्यों निर्भर है? क्योंकि वो हमारे उद्धार से संबंधित है। And some people know that the thief on the cross was not baptized. और आप में से कुछ लोग ये भी जानते हैं कि जो डाकू था वो सूली पर जब चढ़ा था वो कहाँ बपतिस्मा लिया? Many young people they ask me, why pastor, why do you ask us to get saved by baptism? और कई जवान लोग आकर प्रश्न करते हैं, पासवान आप क्यों हमसे बोलते हैं कि जल का बपतिस्मा लेकर हम उद्धार पाएं? They ask me, why do you require us to be baptized when the thief on the cross was never baptized? और वो हमसे जानना चाहते हैं कि जब डाकू जो क्रूस पर था उसको बपतिस्मे की जरूरत नहीं पड़ी तो हमारे लिए क्यों जरूरी है बपतिस्मा लें? He entered into paradise along with Jesus. वो तो यीशु के साथ ही सब लोगों में प्रवेश कर गया। You know, my answer is, मेरा उत्तर है, I tell you to be baptized because you are a thief, not on the cross. मैं इसलिए उनके जवाब देता हूँ, मैं तुमसे बपतिस्मा लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम डाकू वो नहीं हो जो क्रूस पे टंगे थे। You are a thief uncrucified. वो तुम ऐसे डाकू हो जिसको सूली पर नहीं चढ़ाया। For a thief on the cross, it was not possible to be baptized. और जो क्रूस पर लटक रहा डाकू था उसके लिए संभव नहीं था कि उस समय वो जाके बपतिस्मा For लेता। you, it is possible. लेकिन आपके लिए संभव है। When it is possible and still you don't do it, that amounts to disobedience. और जब आपके लिए संभव है और आप नहीं करते हैं तो वो आज्ञा की अवहेलना कहलाती है, आज्ञा नहीं मानना होता You है। have time to be baptized, आपके पास समय है बपतिस्मा लेने का, convenient situation, आपके पास सुविधा है और परिस्थिति अनुकूल है you have बपतिस्मा a की। pastor who is ready to be baptized you. आपके पास एक पासवान है जो आपको उद्धार देने के लिए बिल्कुल तैयार है। You have the water ready and the man of God ready. और आपके पास जल भी तैयार है और परमेश्वर का दास भी तैयार है। The whole situation is convenient for you to get baptized. सारी परिस्थिति अनुकूल है आपके कि आप बपतिस्मा ले लें। Yet you want to follow the example of the thief on the cross. और आप जो है उस डाकू के जो है अनुसरण में लगे हुए हैं। You don't want to follow the example of the precious Lord Jesus who was baptized in the river Jordan. आप जो है यीशु जो उसके अनमोल वचनों को और जो स्वयं यरदन नदी में डूब के बपतिस्मा लिया उसको नहीं अनुसरण कर रहे हैं। Whom do you count as the exemplary person for your life? आपके जीवन के लिए आप अपने समकालीन व्यक्ति में किसको देखते हैं? Whose example do you want to कौन follow? के आप आदर्श आप मानते हैं या किसको आप आदर्श बनाना चाहते हैं? You want to follow Jesus' example or you want to follow the thief? आप यीशु को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं या डाकू को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं? Paul said, पौलुस ने कहा, be imitators of me as I am the imitator of Christ. पौलुस ने कहा तुम मेरा अनुसरण करो जैसा कि मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। If you become an evangelist, यदि आप प्रचारक बनेंगे, you should rewrite that 1 Corinthians 11 chapter first verse. और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के पहले आयत को जरा याद रखें। You
You will have to tell your disciples, और आपको ये बताना पड़ेगा शिष्यता में, be ye imitators of me as I have been imitating the thief. और जो है आपको कहना पड़ेगा कि मेरा अनुसरण करो जैसे मैं डाकू का अनुसरण कर रहा हूँ। See, I don't think along those lines that the thief was not baptized, I want to baptize. और मैं ये नहीं सोचूंगा कि डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया इसलिए मैं नहीं लूंगा, मैं कहूंगा मुझे तो बपतिस्मा चाहिए। My logic is, मेरे प्रभु ने लिया बपतिस्मा, my Lord was baptized and I will be baptized. मेरा प्रभु बपतिस्मा लिया और उसने कहा इसलिए मैं भी बपतिस्मा लूंगा। I follow Jesus, not the thief. मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ ना कि डाकू Dear का। brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we know that the Lord Jesus Christ has commanded us expressly to be baptized in the water. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जल के बपतिस्मा, डूब के बपतिस्मा को लेना है। We know that Jesus himself was baptized. और हम ये भी जानते हैं कि यीशु स्वयं भी बपतिस्मा लिया। We know that Apostle Paul himself was baptized. हम ये भी जानते हैं कि प्रेरित पौलुस भी बपतिस्मा को लिया था। We know that Peter the apostle told the first converts on the day of Pentecost, commanded them to be baptized. और हम जानते हैं पतरस जब पेंतिकोस्त के दिन आत्मा में भर गया था, खड़े होकर भीड़ को ये कहा कि बपतिस्मा लें। Still we talk that we don't want to be baptized, that we want to follow the thief. फिर भी हम यही कहेंगे कि हम बपतिस्मा नहीं लेना चाहते और हम डाकू का अनुसरण ही करेंगे। When you talk that kind of a language, God judges that this person is disobedient. जब आप इस तरह की बातें कहते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय को तौलता है और जानता है कि ये आज्ञाकारी नहीं है। Before giving you the eternal gift of salvation, इससे पहले कि आपको अनंत के वो उस तोहफे को, उद्धार को आपको दे, God wants to see whether you are obedient or not. परमेश्वर ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि आप आज्ञाकारी हैं या नहीं। For that he gave the commandment of baptism. इसलिए उसने जो है बपतिस्मा की आज्ञा दी। When you get baptized in the waters, जब आप बपतिस्मा जल में लेते हैं, standing in the waters of baptism, और पानी बपतिस्मा लेने के लिए जल में खड़े हैं, what are you thinking in your mind? क्या चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं? You are thinking, my Savior commanded me to get baptized, so in obedience I am standing here in the water. और आप उस समय ये सोचते हैं कि मेरे उद्धारकर्ता ने ये आज्ञा दी है कि जल के डूब के बपतिस्मा को लूं, इसलिए मैं यहाँ जल में खड़ा हूँ। The pastor who is going to baptize you, what he is thinking in his mind? और वो जो पासवान है वो क्या सोच रहा है अपने मन में आपके प्रति? The pastor is thinking, the Lord who called me to this ministry had commanded me to baptize the believers, so I am standing here. और वो पासवान ये सोच रहा है कि जिस परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाहट दी है, वो प्रभु की आज्ञा है कि मैं बपतिस्मा दूं, इसलिए मैं आज बपतिस्मा देने के बाबत यहाँ खड़ा हूँ। The pastor wants to baptize you because he wants to obey Jesus. पास्टर उसको इसलिए बपतिस्मा दे रहा है क्योंकि वो यीशु की आज्ञा को मानना चाहता है। And you want to get baptized because you too want to obey the Lord Jesus. और आप भी इसलिए बपतिस्मा लेना चाहते हैं क्योंकि आप भी यीशु की आज्ञा को मानना चाहते हैं जो यीशु ने कही। When both the persons are agreeing in faith, और जब दोनों व्यक्ति विश्वास में सहमत हो जाते हैं, the miracle of salvation happens. तो जो है वो उद्धार का चमत्कार काम करने लगता है। The God of the universe, the God of our salvation is pleased. और वो ब्रह्मांड का परमेश्वर, उद्धार का परमेश्वर खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है। He comes down वो उतर आ जाता है, पवित्र आत्मा के रूप में उतर आता है, and he sprinkles his precious blood upon the new believer. और वो अपने पवित्र लहू का छिड़काव करता है अपने विश्वासियों के ऊपर। The ingredient, the substance that washes away our sin is the blood of Jesus. और वो तत्व, वो चीज जो हमारे पापों को धोती है, वो है मसीह यीशु का लहू। The waters of baptism do not wash our sins. बपतिस्मा के जल हमारे पाप को धोते नहीं हैं। Only the blood of Jesus washes from our sins. प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमारे पापों को शुद्ध करता है। It is indisputable that only the blood can cleanse you. इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई ऐसी बात वितर्क नहीं है कि जो है मसीह के लहू से ही छुड़ौती मिलती है। But the blood of Jesus will come upon you when you prove your obedience to Jesus. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह
मसीह का लहू तभी आपके ऊपर आएगा जब आप ये सिद्ध करेंगे कि आप आज्ञाकारी हैं। Even the blood of Jesus cannot and will not cleanse you if you deliberately disobey Jesus. और मसीह यीशु का लहू आपको चाहकर भी शुद्ध नहीं कर सकता है यदि आप स्वेच्छा से उसकी आज्ञाकारिता में नहीं आते हैं। You are saved by faith, आप विश्वास से उद्धार पाए हैं, saved by believing, और आपने विश्वास किया इसलिए आप उद्धार पाए हैं। secondly you are saved by obeying. और दूसरा आप उद्धार पाए हैं आज्ञा मानते हुए। Faith and obedience, these two forces cause the miracle of salvation in your life. विश्वास और आज्ञाकारिता है वो जो हमारे जीवन में चमत्कार करती है। But what all I have shared up to this point और अभी इस बिंदु तक मैंने जो कुछ भी आपके साथ बांटा is just the introduction of the message. ये तो संदेश का सिर्फ एक परिचय है छोटा सा। I am not done with my message yet. मैंने अपने संदेश को समाप्त नहीं किया है। This is how I got my laryngitis, you know. और इसी तरह मेरे को ये बीमारी आई है जो गले में है। You will now understand why the people of Andhra Pradesh gave me title as Maikasur. और जो है इसीलिए आंध्र प्रदेश के लोगों ने जो है क्यों मुझे माइक पकड़ू पासवान करके कह दिया है। You are saved by believing and saved by obeying. आप विश्वास करने से और आज्ञा मानने से उद्धार पाते हैं। Your faith and obedience are displayed at the point of baptism. आपका विश्वास और आज्ञाकारिता प्रकट होती है जल की बपतिस्मा से। Now the actual message begins. अब जो है सही संदेश आ रहा है। At the point of baptism, और बपतिस्मा के उस समय you display your faith. आप अपने विश्वास को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। You announce, you declare that you believe that the Lord Jesus died for your sins, paid the penalty and came back to life in glorified body. आप सामूहिक रूप से ये मान रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, उद्घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे At the point of baptism, और उस बपतिस्मा के उस बिंदु पर you believe God. आपने विश्वास किया। Not only you believe God, आपने केवल परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, you begin to believe God. आप परमेश्वर पे विश्वास करना शुरू कर रहे हैं। At the point of baptism, बपतिस्मा के समय you obey the Lord. आप परमेश्वर को मानते हैं। Not only that, you simply obey the Lord. आप उनकी आज्ञा केवल सहज रूप से नहीं मानते, You begin the lifetime process of obeying the Lord. आप अपने जीवन प्रक्रिया में वो आज्ञाकारिता को ले आते हैं। The act of baptism और पानी का बपतिस्मा is the beginning of your believing on the Lord. और आपका शुरुआत है प्रभु के साथ का पहला कदम है। The act of baptism और जल का बपतिस्मा is the first step of your obedience to the Lord. आपके प्रभु की आज्ञाकारिता का पहला कदम है। By taking baptism, बपतिस्मा लेने से you declare silently, आप ये बात प्रकट कर रहे हैं बगैर किसी शब्द के, Lord, I do this in obedience to your commandment. प्रभु मैं आपकी आज्ञा के चलते आज्ञा पालन के तहत में ये कर रहा हूँ। I obey you, Lord, today in the water of the baptism. आज मैं जल की बपतिस्मा में आपकी आज्ञा को मान रहा हूँ। Not just obeying you today, Lord. केवल आज के लिए नहीं मान रहा हूँ आपकी बातें, From here onward, लेकिन अब से लेकर I obey you each day of my life. अब मैं प्रतिदिन अपने जीवन के आपको मानूंगा। I will obey you every moment of my life. हर आज्ञा पालन को मैं करता चलूंगा आपकी अब आगे के हर जीवन में। I will walk every step of my life in obedience to you. मेरे हर एक कदम आपकी आज्ञाकारिता में ही आगे बढ़ेंगे। When I take up a job, I obey you and I will do your will, O Lord. और मैं जब कोई नौकरी में जाऊंगा तो वहां भी आपकी आज्ञाकारिता में बना रहूंगा और आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। When I select a girl or a man to marry, I do that in obedience to you, Lord. जब मैं जीवन संगी को चुनूंगा तब भी मैं ये है बहुत आपकी इच्छा को जानूंगा और आज्ञाकारिता में बना When रहूंगा। I give my 1/10 of my income, my tithe offering to you, I do that in obedience to you. और जब मैं अपना दशांश दूंगा तब भी मैं आज्ञाकारिता में आपके बने रहूंगा उसमें। When I kneel down to pray every morning, I do that in obedience to you. जब मैं
When I forgive my enemies, I do that in obedience to you. और फिर मैं अपने जो है बैरियों को जो है उनको शत्रुओं को भी माफ करूंगा। If you are a man, you tell God, when I love my wife, I do that in obedience to you. और जो है जब एक मनुष्य होने के नाते आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने पति से भी प्यार करता हूँ, तो आपकी आज्ञाकारिता से चलते हुए। If you are a married woman, you say, यदि आप विवाहित स्त्री हैं तो आप कहें, Oh Lord, when I obey my husband, I do that in obedience to you. और जब मैं अपने पति की आज्ञा को मानती हूँ तो मैं आपकी आज्ञाकारिता के चलते ये करती हूँ। When I run away from sin and fornication like Joseph, I do that in obedience to you. और जब मैं पाप से दूर भागता हूँ यूसुफ की तरह परस्त्री गमन से, तो मैं जो है ये आपकी आज्ञाकारिता के चलते ऐसा करता हूँ। Taking baptism is the beginning of your long, lifelong journey. जल का बपतिस्मा जो है वो अनुशासन जीवन की आज्ञाकारिता के जीवन की पहला कदम है, जो एक लंबी यात्रा की शुरुआत महज है। If you simply obey the Lord in the waters of baptism, यदि आप साधारण रूप से जल की बपतिस्मा में यदि आप आज्ञाकारिता करेंगे, and after that every other step you go on disobeying the Lord, और फिर आगे के जीवन जो है आज्ञा को न मानेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे, then Hebrews 5:9 goes against you. तो फिर जो है इब्रानियों 9:5 आपके विपरीत है। Not only enough to obey Him one day in your life. और वो जो है केवल आज्ञा का नहीं, भटकने का जीवन भी हो It जाए। is not just enough if you obey only one day in one instance. और एक दिन में एक ही बार आज्ञा पालन करना नहीं है, You obey Him the rest of your life. अपने पूरे जीवन उसकी आज्ञाकारिता में बने रहे। Whatever important decision you take in your life, जो कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय आप अपने जीवन में लेंगे, just come on your knees, kneel down and pray and ask for the counsel of the Lord. और अपने घुटने पे बैठ जाएं और परमेश्वर के मशवरा को मांगे कि परमेश्वर की सलाह क्या है। Guide me, O Lord, in the life sojourn. जीवन की यात्रा में मेरी अगुवाई कर प्रभु, Tell me what to do. और मुझे कहे कि क्या करना है। Reveal me your will at every step. अपनी इच्छा को प्रकाशित कर हर एक कदम पर मेरे। It's always safe for you to do the will of the Lord. और परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको अपनी इच्छा पूरी करने देगा। One day in my life it so happened, और मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ, I got an air-conditioned sleeper coach bus reserved for me to go 300 kilometers from Hyderabad. और हैदराबाद से जाने के लिए 300 किलोमीटर दूर एक स्थान पे स्लीपर कोच में मेरा रिजर्वेशन किया गया। I went to the bus stand. मैं बस स्टैंड में गया, The bus was there. बस वहाँ खड़ी थी, I was there half an hour before the time. और मैं बस के आधा घंटा पहले पहुँच गया था समय के। Conductor was calling all the people. और कंडक्टर सारे लोगों को बुला रहा था, Come on, all those who have registered the seats, come board the bus. और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, वो रिजर्वेशन लिया, वो सब आके बस में बैठ जाएं। I was about to enter the bus. The Holy Spirit told me, "No, son, I don't want you to board this bus." और मैं जैसे उस बस में चढ़ने को जा रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, नहीं, तू इस बस में नहीं जा। I said, "Okay, my Lord, I go back home." तो मैंने कहा, ठीक है प्रभु, मैं घर वापस जा रहा हूँ। I came back home and my assistants, my associates, my disciples were there. और जब मैं घर वापस आया तो मेरे सहयोगी, सहायक लोग और मेरे साथी लोग, मेरे चेले लोग सब वहाँ थे। They call me Anna, the elder brother in Telugu. और वो जो है तेलुगु में अन्ना करके बोलते हैं, बड़े भाई। What happened? Why you didn't go to Vijayawada? और वो आकर पूछने लगे, आप क्यों लौट आए भाई, आप विजयवाड़ा क्यों नहीं गए? I said, the Lord didn't want me to go. और मैंने कहा, प्रभु नहीं चाहता है कि मैं जाऊं। They said, did you miss the bus? उन्होंने कहा, क्या बस छूट गई? No, the bus actually missed me. लेकिन मैंने कहा, नहीं, वो बस मेरे को लेने में चूक गई। I was there in time. मैं तो समय पे पहुंचा था, But God told me not to go. लेकिन परमेश्वर ने कहा मत जाओ। And after some time, और कुछ समय बाद I boarded the following bus after 2 hours. और उसके 2 घंटे बाद एक बस में मैं चढ़ गया। And when I was going half the way to Vijayawada, और विजयवाड़ा के आधे रास्ते में मैं पहुंचा, and that same bus which I was prevented by the Lord from boarding, the same bus I saw, it met with a heavy accident, and all the people were bleeding heavily in the bus.
और जब मैं इस बस से पहुंचा तो जो बस जिसमें पवित्र आत्मा ने मुझे जाने से रोका था, वो बस को मैंने आगे देखा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना की शिकार हुई और हर एक जन का खून बह रहा था उस मोड़ पे। Some 5 people sitting in the front 5 seats of the bus, they died on the spot. और शुरू के 5 सीट में बैठे हुए लोग उसी इस दुर्घटना स्थल पे ही मृत हो गए। I should have been there in that seat, front seat. और मुझे उस आगे की सीट में ही होना था। If God did not prevent me, I should be dead long back. तो यदि परमेश्वर मुझे नहीं रोकता तो मैं बहुत पहले ही मृत हो गया होता। I had no ear to hear the voice of the Holy Spirit. I should have been dead long back. और फिर जो है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए मेरे पास कान नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही मृत हो गया। Every Christian must have the ear tuned to the voice of the Holy Spirit. और हर एक क्रिश्चियन मसीही लोगों के कान जो है परमेश्वर की आवाज को, वाणी को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। Obey the Lord not only in doctrinal issues, केवल बपतिस्मा में ही परमेश्वर की आज्ञाकारिता को ना दिखाएं, not only about सिद्धांत, about the doctrinal issues, और उद्देश्य की बातों तक ही सीमित ना रहें, but every small step of your life. हर एक जीवन की छोटे छोटे बातों में, कदमों में। Some people marry without knowing the will of God. कई लोग जो है विवाह कर लेते हैं परमेश्वर की इच्छा को जाने And में, their spiritual life is destroyed by that marriage. और उनके आत्मिक जीवन जो है उस शादी के बाद बर्बाद हो जाता, तबाह हो जाता। Some people start a business without knowing the will of God and they run into losses and they become bankrupt. परमेश्वर की इच्छा के बगैर ही व्यवसाय करने उतर गए और फिर जो है बाद में खूब ऋण हो गया और वो उनकी पूंजी जाती The रही। first day of your Christian life, you begin to obey the Lord. और अपने दिन की शुरुआत जो है वो मसीहा की आज्ञाकारिता में बिताएं और शुरू करें। Keep on obeying the Lord to the last breath of your life. और अपने जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु की आज्ञा को मानते चलें। Now the main point the Holy Spirit wanted me to share with you. और जो मुख्य बिंदु थी जो पवित्र आत्मा चाहती है कि मैं आपके साथ बांटूं। When you take baptism, you begin your Christian life. जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप अपने मसीही जीवन शुरू करते हैं। You believe on the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। And you are saved by continually believing Him every moment of your life. और जो है आप हर एक क्षण जो है वो उद्धार को पाते जाते हैं उस पर विश्वास करते हुए। The act of believing is not a single momentary act. और विश्वास की जो बात होती है, क्रिया है, वो एक क्षण की क्रिया नहीं है कि एक बार विश्वास किया। Like baptism, you take on a single day. बपतिस्मा आप एक दिन ले सकते हैं। You don't get baptized every day. हर दिन बपतिस्मा नहीं होता है। But obedience you do every day. लेकिन आज्ञाकारिता जो है वो रोजाना होती है, होना चाहिए। Believing you do every day. विश्वास करना भी रोज प्रतिदिन चलता रहता है। Keep on trusting the Lord. परमेश्वर पर निर्भर रहें, आश्रित रहें। Keep on believing the Lord. परमेश्वर पर भरोसा करते रहें। I am closing my message. मैं अपने संदेश को समाप्त कर The रहा हूँ। Bible tells us बाइबल हमें बताती है you are saved by faith. आप विश्वास के द्वारा बचाए गए। That means इसका मतलब you are saved by continually keeping your faith on the Lord. आप विशुद्धार इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप अपने विश्वास को परमेश्वर में बरकरार रखे हैं निरंतरता के रूप में। You are saved by trusting the Lord in every situation. हर परिस्थिति में आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसलिए आप उद्धार में बने हैं। Never doubt the goodness of the Lord. परमेश्वर की भलाई को कभी भी शंका न करें। Never doubt the power of the Lord. परमेश्वर की सामर्थ पे शंका न करें। Never doubt the promises of the Lord. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह न करें। Keep on trusting Him. उस पे भरोसा करते रहें। Trust in the Lord always. और हमेशा उस पे भरोसा रखें, सर्वदा उस पे भरोसा रखें। You know why the Bible tells us so many hundreds of times to believe the Lord, to believe the Lord. आप जानते हैं बाइबल हमें क्यों सैकड़ों बार ये कहती है बार बार कि विश्वास करो, विश्वास करो। You know, I am telling you something very interesting. मैं आपको कुछ बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। The Bible tells you to keep on believing the Lord. और प्रभु पर विश्वास करते रहो करके बाइबल हमें सिखाती बताती है। Because क्योंकि you will always have reasons to doubt God.
आपके पास हमेशा तर्क होगा कि आप शंका या संदेह करें परमेश्वर पर। You will have always reasons to disbelieve God. आपके पास हमेशा तर्क होंगे कि आप परमेश्वर पे अविश्वास करें, विश्वास ना करें। Those who believe God, they believe against the odds. और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो हर विकूल परिस्थिति पर भी विश्वास बनाते हैं। Some people say, no, how can I believe, sir? I have so many doubts in my mind. और कई लोग कहते हैं मैं कैसे विश्वास करूं, मेरे दिमाग में इतनी सारी शंकाएं भरी हैं। I have so many questions in my mind. मेरे दिमाग में इतने सारे प्रश्न डले हैं। I will believe if you clear all my questions. और मैं विश्वास तब करूंगा जब आप मेरे सारे सवालों का जवाब दे देंगे। You settle all my doubts. और आप मेरे शंका को दूर कर दीजिए। I am telling you something very, very important, a lesson for your lifetime. और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी सीख देना चाहता हूं जो पूरी जिंदगी आपके लिए उपयोगी रहेगी। If you believe God, after settling all the questions, there is no faith at all. तो फिर यदि आप परमेश्वर पर विश्वास तब करेंगे जब आपकी पूरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, तो इसका मतलब आप में विश्वास लेश मात्र भी नहीं है। There is no faith at all. इसका मतलब है विश्वास बिल्कुल नहीं है आपके अंदर। Abraham believed God when he had no basis for his faith. और अब्राहम ने परमेश्वर पर तब विश्वास किया जब उसके पास कोई ऐसा आधार या कारण नहीं था कि वो यकीन फरमाए, विश्वास करे। Abraham believed God when his faith was unscientific, against the nature and illogical. तार्किक और जो है प्रकृति के विकूल जब बातें परमेश्वर ने कही उससे तो उसने उस पर विश्वास किया। Abraham was 100 years old. और इब्राहिम 100 वर्ष का था। Sarah was 90 years old. और सारा जो है 90 वर्ष की थी। And that woman Sarah was a barren woman even when she was in prime youth. और वो जो है तब भी बांझ थी जब वो भरपूर जवानी में थी। सारा She couldn't even conceive when she was 25 years old. जब वो 25 साल की थी तब तो वो गर्भ धारण नहीं कर सकी। Now she is 90 years. और अब तो वो 90 वर्ष की है। Barren lady. एक बांझ स्त्री। Any doctor would say simply it is impossible that she would conceive. कोई भी डॉक्टर सहज रूप से यही कहेगा कि ये तो असंभव है कि वो अब गर्भ धारण कर सके। But God said she would conceive. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो गर्भवती होगी। Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। And God counted that faith as his righteousness. और परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता जाना। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, you must believe God even though you have some objections. आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है यद्यपि आपके पास कई आपत्तियां हों। When you don't want to believe God unless all your objections are clear, आप तब का इंतजार न करें जब आप सारी शंकाओं का आपका समाधान हो if जाएगा। you want to wait till all the objections are clear, और आप सारे अपने शंकाओं को दूर करके विश्वास करें, you have glorified your own intelligence and wisdom above God. तो फिर आप अपनी ही बुद्धिमत्ता को परमेश्वर से भी ऊंचा साबित कर रहे हैं। I am telling you, मैं आपको कहता हूँ, I have been following the Lord for 50 years. और जो है 5 वर्ष और अगर जोड़ ले तो मैं कहूँगा कि मैं 50 वर्ष से प्रभु के पीछे अनुसरण कर रहा I हूँ। received the Lord into my heart when I was 6 years old. मैंने प्रभु को अपने हृदय में तब स्वीकारा जब मैं 6 वर्ष का था। I was filled with the Holy Spirit when I was 10 years old. और जब मैं पवित्र आत्मा से तब भर गया जब मैं मात्र 10 वर्ष का था। Just imagine how long I have been following the Lord. जरा याद करें हमें कितने बरस में परमेश्वर के पीछे हूँ। But I want to tell you, I have my own doubts. और मैं आपको ये बताऊं, मेरे भी अपने घर में मेरी अपनी शंकाएं थी। I have my own questions. मेरे अपने तर्क थे, प्रश्न थे। I cannot say that I know everything. मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को सब कुछ मालूम है। I know I have my own questions. मेरे पास मेरे अपने तर्क हैं, प्रश्न हैं। I know मैं जानता हूँ। I know for sure और मैं इस बात से निश्चय that हूँ। all my questions will be cleared by Jesus when he comes back for the second time. मेरे सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर यीशु देगा जब वो दोबारा I आएगा। can wait till the Lord comes. और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक प्रभु आएगा। The master teacher, the guru of the whole universe is
is Jesus Christ. और सब गुरुओं का गुरु, जो ब्रह्मांड का गुरु, वो यीशु मसीह है। He is coming back to clear all my doubts. वो दोबारा आने वाला है ताकि मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर सके। I know this much. मैं इतना जानता हूँ, I know that I am a sinner by birth. और मैं ये जानता हूँ कि मैं जन्म से पापी हूँ, And I know Jesus died for my sins and came back to life. और मैं ये जानता हूँ कि यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया और So फिर I जीवन believe दान him. आया। So I believe him. इसलिए मैं उसका विश्वास करता हूँ, I don't care what my mind argues about. और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे दिमाग क्या क्या सवाल उठाते हैं। At every step of your life, हर एक जीवन के कदम में you will have reasons not to believe God. आपके पास तर्क होंगे कि आप परमेश्वर पर यकीन ना करें। In 40 seconds, I am closing within 2 minutes. और मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। Don't be in a haste to go. 40 seconds, I am 9 words. और जो है 42वां भजन संगीता का 9वां है। The great psalmists, the sons of Korah, or they are singing like this. और जो है कोरह वंशी लोग इस तरह गीत गा रहे हैं। I pray to the God who is my refuge. मैं अपने परमेश्वर को पुकारा जो मेरा आसरा है, गढ़ है। Lord, why have you forgotten me? तूने मुझे क्यों भुला दिया? Why have you forgotten me? क्यों तूने मुझे भुला दिया? I have been praying to you for such a long time. मैं इतने लंबे समय से तुझसे प्रार्थना कर रहा था। My enemies are troubling me. और मेरे शत्रु लोग मुझे सता रहे हैं। I am crying in your presence. और मैं जो है रो रहा हूँ। Why you are not caring about my troubles? O Lord? आप मेरी समस्याओं के प्रति क्यों प्रभु ध्यान नहीं दे रहे हैं? Where have you gone? आप कहाँ चले गए हैं? Why have you forgotten me? क्यों आपने मुझे भुला दिया? In 22nd Psalm also, और 22वें भजन संगीता में भी the King David, the psalmist, he says, और दाऊद जो है भजनकार वो यूं कहता my है, God, why have you forsaken me? मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? In your life also, some many times you will have reason to cry the same prayer. आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से कारण होंगे जब आप ये प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसे रो सकते हैं। There were times in my own life also. मेरे अपने जीवन में भी ऐसा समय था। Lord, what have I done? What mistake have I done that you have left me? प्रभु, क्यों मैंने क्या गलती करी और मुझसे क्या ऐसी चूक हो गई कि आपने मुझे छोड़ दिया? Why you are so silent? और आप क्यों इतने मौन हैं, शांत हैं? Why are you turning a deaf ear to me? और आप क्यों मेरे प्रति जो है बिल्कुल बहरे बने हुए हैं? The prophet Jeremiah asked the same question in the book of Lamentations. यिर्मयाह ने भी, भविष्यवक्ता ने जो है विलाप गीत में यही बात उठाई। David asked the same question. दाऊद ने भी यही प्रश्न किया। The greatest of the saints, Job, also raised the same question. और संतों का संत जो कहलाता है अय्यूब भी यही सवाल उठाता है। Why have you forsaken me? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया या त्याग दिया? Why are you so cruel to me? और क्यों आप इतने मेरे प्रति क्रूर हो रहे हैं? Why are you treating me as an enemy? और आप क्यों मुझे एक बैरी या शत्रु मुझे समझ रहे हैं? Whatever has happened to all your loving kindness, और आपकी वो प्रेम के प्रति क्या बात रह गई है अब? you will have reason to doubt God. आपके पास तर्क और कारण होंगे कि आप शंका करें, संदेह करें परमेश्वर पर। Many times the Lord refused to answer my prayers. और बहुत समय प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं दिया। If God answers every one of your prayers, यदि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे दे, any fool will believe in God. तो फिर कोई भी मूर्ख परमेश्वर पर विश्वास कर लेगा। God gives you everything you ask for. और परमेश्वर भी सब कुछ आपको मांगने को दे दे आजादी। Any fool will believe God. तो सारे मूर्ख लोग हर बात को विश्वास कर लेंगे। But when you trust even when He is refusing your prayers, लेकिन जब आप उस पर तब भी भरोसा रखते हैं जब आपकी प्रार्थना की वो अनसुनी कर रहा हो, you trust Him when He is ignoring your prayers. और जो है आप उसके प्रार्थना को सुन रहे हैं, You trust Him when He is not solving your problem. और वो आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, वो आपका निजात नहीं दे रहा, समाधान नहीं दे रहा है, That is when you are proved to be a stalwart of faith. तब फिर आप जो है विश्वास के जो है भंडारी माने जाते हैं। You are a warrior of faith. आप एक योद्धा माने जाते हैं विश्वास के। You are a great man of faith and a woman of faith. आप एक महान व्यक्ति कहलाते हैं, विश्वास के योद्धा कहलाते हैं। Keep on trusting the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखते जाएं, And very soon और बहुत जल्द there is going to be a great tribulation for all Christians
troubles all over the world. और मसीहत के तमाम लोगों को पूरे संसार में वहाँ क्लेश होगा। Oh, there will be very troublesome days. और वो बहुत ही भयानक दिन होंगे। The Christians who are faithful to the Lord are going to be tortured almost to the point of death. और जो मसीही लोग जो विश्वासियों के हैं उनको मृत्यु तक इस यातनाएं दी जाएगी। The Antichrist, the coming world dictator, will make you starve for your faith. और जो है एंटीक्राइस्ट जब सामर्थ में आएगा मसीह विरोधी, तो वो आपको जो है भूख करके मृत्यु तक ला के रखेगा आपके विश्वास को देख। If you say Christ is my God and my Lord, you will not have your ration, you will not have your food. यदि आप कहोगे कि मसीह मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, तो आपको कोई रेशन नहीं मिलेगी किसी तरह की। You will be jailed, you will be imprisoned. और आप जो है बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे। You will be tortured. आपको यातनाएं दी जाएंगी। And many of the Christians will be martyred, they will be killed. और बहुत से मसीही लोग शहीद होंगे विश्वास के खातिर। Those are the days your faith will be tested. और वो होगा समय जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। In Luke's Gospel, 18th chapter, 8th verse, और लूक 18:8 में लिखा है, Jesus raises the question, यीशु वहाँ सवाल उठा रहा है, when the Son of Man comes back to this earth, जब परमेश्वर का पुत्र जो है मनुष्य का पुत्र संसार में वापस आएगा, will he find that faith in this world? क्या वो संसार में विश्वास पाएगा? When Christ comes back, जब मसीह आएगा दोबारा, when Christ will come back, जब मसीह आएगा you वापस, know what he's going to look for on the face of earth? तो संसार में वो किस चीज की खोज में रहेगा आप जानते हैं? He's not going to look for great, big, beautiful cathedrals. और वो जो है बड़ी बड़ी कलीसियाओं की इमारतों को नहीं देखेगा कि कहाँ है, कहाँ क्या बनी है। He's not going to look for great, beautiful churches. ना वो सुंदर चर्चेस को देखेगा कि कहाँ है, कहाँ He's पे going to look for faith on the face of earth. वो विश्वास को संसार के मुखड़े पे देखेगा ढूंढ ढूंढ के। When I come back for the second time, और मैं एक निश्चित समय में वापस आऊंगा, will I find faith on earth? क्या संसार में विश्वास पाया जाएगा? You know why the Lord is asking that? आप जानते हैं परमेश्वर क्यों ये The पूछ रहा day है? of the second coming of the Lord बिकॉज जब परमेश्वर के दूसरे आगमन का समय आएगा, are going to be the toughest times of testing for every believer. तो सारे विश्वासियों के परखे जाने का सबसे कठिन समय, कठोर समय होगा। Under the rule of Antichrist, मसीह विरोधी के उस शासन काल में if you should continue work out your own salvation, यदि आप अपने उद्धार के लिए खुद कार्यरत रहेंगे, you should have the faith like the faith of Job. तो फिर अय्यूब की भांति आपका विश्वास उस समय होना You should चाहिए। have the faith of Jeremiah and Saint Paul. और यिर्मयाह और संत पौलुस की तरह आपका विश्वास होना चाहिए। You should have the faith of the great Richard Wurmbrand of Romania. और रोमानिया के रिचर्ड वुर्मब्रैंड की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। You should have the great faith of Watchman Nee. और जो है विश्वास हमारा होना चाहिए वॉचमैन की तरह। You should have the faith of the early Christians. और पहले युग के मसीहियों की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। They suffered for their faith and they died for their Lord. और वो विश्वास के खातिर उन्होंने यातनाएं सही और जो है प्रभु के खातिर वे मृत हुए। My simple question tonight, मेरा आपसे एक सहज सवाल है, rather God's simple question tonight, परमेश्वर का एक सहज सवाल आपसे, will you trust Jesus when He is refusing to answer your prayers? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना के उत्तर को देने के लिए ना दे रहा हो? Will you trust Jesus during the time of the great tribulation under the rule of Antichrist? वो महाविपत्ति के समय, उपद्रव के समय क्या आप मसीह यीशु पर भरोसा रखेंगे? If you can trust the Lord only during the comfortable times of living, यदि आप सहज और सुखद जीवन के जीते समय ही परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं तो, if you can only trust the Lord when He answers your prayer, और यदि आप परमेश्वर पे तभी भरोसा करते हैं जब वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता हो, you are not a believer at all. तो फिर आप विश्वासी बिल्कुल नहीं है, कतई You are नहीं है। not fit to live in glory forever at all. और आप अनंतता की उस महिमा में रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। Let us examine ourselves once again.
इसलिए हम अपने आप को जांच कर देखें एक बार। Let us rededicate ourselves once again. अपने आप को पुनः समर्पित करें प्रभु के हाथों में एक बार। Let us all close our eyes and bow our heads in a word of prayer. और प्रार्थना के उस वचन में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और शीशों को Kindly करें। close your eyes and open your spiritual eyes. अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आत्मिक आंखों को खोल लें। Look to the Lord प्रभु की ओर निहारें and ask Him to search your heart. और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय को टटोले। Tell the Lord, प्रभु से कहें, Lord, kindly search my heart and let me know if I really am obedient to you. प्रभु मेरे हृदय को टटोले और जाने और मुझे बताएं क्या मैं जान सकूं कि क्या मैं आज्ञाकारी हूं कि नहीं हूं। Reveal me, O Lord, whether I really believe on you. और मुझे प्रकाशित कर खुदावंद कि मैं जानूं कि मैं आप पे विश्वास करता हूं वास्तविक तौर पे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, when you test my faith and obedience in the time of great tribulation, और उस महाउपद्रव के समय जब आप मेरे विश्वास को परखोगे और देखोगे, what will be the outcome in my life, O Lord? मेरे जीवन में क्या वो बात देखने मिलेगी प्रभु। Help me to trust you as much as Job did. मुझे इतना आसरा आपके ऊपर करने का मन दे जितना कि अय्यूब करता था। Help me to trust you as much as David and sons of Korah did. और कौरव वंशी और दाऊद की तरह प्रभु हमारा आसरा तुझ पर होने पाए प्रभु। Help me to trust you like the early disciples of first century. और पहली शताब्दी के उन आपके शिष्यों और चेलों की भांति हमें भी प्रभु आप पर भरोसा और आसरा बनाए मदद करें। Help me to trust you every moment of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षण आप पर भरोसा रखने में आप मुझे मदद करें। Help me to obey you every juncture of my life. जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु हर मोड़ पे आपकी आज्ञाकारिता में हम बने रहें। Take every turn in my life journey in absolute obedience to you. और प्रभु हर एक जीवन जो है हमारी हरकत जीवन की आपके अनुशासन और आज्ञाकारिता की उसमें होने पाए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Almighty God, O most loving Heavenly Father, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, thank you, Lord, for sending your almighty, precious word, heart-searching word into our midst tonight. प्रभु आपके सर्वशक्तिमान वचन को जो हमारे हृदय को टटोलता और जांचता है उस दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद। You are an omniscient God. You know everything, O Lord. और प्रभु आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु। You know all the secrets of our hearts and our lives. हमारे हृदय की हर एक बात को, रहस्य की बातों को सब आप जानते हैं। You know our weaknesses and shortcomings, O Lord. हमारी कमजोरियों और निर्बलताओं को आप जानते हैं प्रभु। Thank you, Lord, that you have challenged us to trust you and obey you. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चुनौती दी कि हम आप पर विश्वास करें और आज्ञाकारी बने। Let everyone who received your word, और हर एक जन जो वचन को पाए हैं, let them all make the right decision. और प्रभु वे सब जितने सही निर्णय लेने पाए। Let thy word bear 100-fold fruit in our hearts and lives. और प्रभु उनके जीवन में और प्रभु उनके हृदय में 100 गुना फल देने पाए ये वचन। Bless the word in our hearts and water it and make it fruitful, O Lord. और प्रभु उस वचन को प्रभु पानी मिले और प्रभु आपका वचन फलवंत होने पाए। Continue to speak unto us in the coming 2 days of this convention. और ये आगामी 2 दिनों के कन्वेंशन में हमसे बातें करते रहे प्रभु। In the name of Jesus we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। For more details, contact Ophir Ministries, LIG 86/1, 3rd phase, KPHP Colony, Kukatpalli, Hyderabad 5,72,000. Our numbers 9908 773 008 99511 00444. Our website www